that itself was a big impact in the mindset. That is when I became what today we call financially independent. So on the 50th birthday, he gifted himself a resignation. 50 साल हो गया किया क्या? So today also I am learning. I am 52 and I am 52% equity. Passive का मतलब ये नहीं है कि बस करके छोड़ दो. In fact, you should not stop earning. Your biggest investment is the time that you have spent on education. जो पैसा आज आप खर्च नहीं कर रहे हो वो आपका कल का इन्वेस्टमेंट. आई हैव ऑलमोस्ट 100% रिटर्न. अभी माइक्रो मैनेज करने का दिन मेरे चले गए. नेवर take out the money that you have invested. So financial independence basically gives your mind a stability. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट सीरीज ऑफ आई इन द मनी. मैं आपकी होस्ट हूँ निकिता एंड आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है मुंबई से मिस्टर फिरोज हु इज़ एक्चुअली ऑल्सो एन ऑथर ऑफ बुक्स लाइक पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन, गर्ल बियॉन्ड फायर एक्सेट्रा. तो मिस्टर फिरोज, क्या आप एक बार प्लीज़ क्विकली अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं हमारे ऑडियंस को? Yes, thanks, Nikita. First, though, I appreciate IND Money giving this opportunity. Okay. Quick introduction. I have been a software professional uh, in the field of data and analytics for almost 30 years. And over that journey, I also got into understanding the importance of finance. It was not part of the education. Uh, Unfortunately, that's how the structure is. But got me onto a path of becoming financially free. And uh, today, I am more involved in things that I enjoy. Not that I did not enjoy working. Aaj bhi, if I get an offer, I would be happy to join. But today, I'm involved in writing more books. My third book is already sort of on the blueprint right now, and I'm also conducting workshops. I'm teaching in a MBA college for data analytics subjects. And as per the general definition, I am a financially free or financially independent person. Though I don't call myself retired. Uh, I think that's a short and sweet about what I've done. अमेजिंग. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मिस्टर फिरोज एंड फॉर द ऑडियंस, प्लीज़ इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखिएगा एज वी विल डिस्कस अराउंड टॉपिक्स लाइक पैसिव इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड ऑल्सो सम कूल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज. मिस्टर फिरोज, क्या आप हमें अपनी जर्नी, क्या आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, एक बार हमें लेके जाएंगे? वॉट लेड यू टू फोकस ऑन राइटिंग एंड देन पर्सनल एम्पावरमेंट एज वेल? Let's start with the early 20s, 22, my age basically, when I finished off my post graduation and joined a job. Money coming in was excellent. Uh, from the pocket money to a salary is a big jump, right? और सारा spend हो रहा था. I think it was about 7, 8 months in the job when somebody very senior happened to see my passbook. When he saw the passport, सिर्फ 500 रुपया था उसमें बैलेंस. ओके. एंड उसके बाद एक बड़ा सा लेक्चर आ गया कि व्हाई आई शुड थिंक अबाउट द फ्यूचर एंड ऑल दैट स्टफ एंड क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगे. बहुत बहुत लंबा सा लेक्चर था विच ठीक है somehow got me thinking that थोड़ा सीरियस होना चाहिए. ओके. उस टाइम पे नॉलेज भी लिमिटेड था. the best knowledge I had, the most complex and the best knowledge मेरे पास जो था कि बैंक का एफडी, फिक्स डिपॉजिट. पास इसके बियॉन्ड अगर नेक्स्ट लेवल का एडवांस बोलो तो रिकरिंग डिपॉजिट, पर इसके इसके अलावा और कुछ ये जानकारी नहीं था. तो नेट नेट ये था. राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर आई हैव बीन इनटू एन हैबिट ऑफ सेविंग्स. ओके. बट नॉट सेविंग्स एज इन सब कुछ सैक्रिफाइस करके त्याग करके सेविंग करना है, वो वाला सेविंग नहीं. मतलब जो भी एक्स्ट्रा मनी बचता था उसको कहीं तो डाल दो और फिर उसको हाथ मत लगा. राइट. So that's how it started. A lot of things happened in my career. Eventually, I ended up with a startup. और वहां पे कुछ liquidity issue आ गया टिपिकल स्टार्टअप के चक्कर में, तो which impacted some personal finances. It was not like कि कोई बड़ा लॉस हो गया या ऐसा कुछ हो गया. बस इतना था. I mean, I always give this example. Instead of going on a exotic vacation during summers, उसको थोड़ा डाउनग्रेड करना पड़ा. We said instead of staying in 5 star, हम 3 star में रुकेंगे टाइम. Okay. But that itself was a big impact in the mindset. कि यार standard of living, not only mine but family का भी standard of living तो impact नहीं होना होता.
ओके, तब मुझे ध्यान में आया कि यार ये सेविंग सेविंग करके नहीं चलेगा, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। ओके, दिस वाज अराउंड 2011। ओके, गुड थिंग क्या हो गया मेरे लिए, 2006 में आई बॉट अ लैपटॉप एंड द लैपटॉप केम विद अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट मनी इंस्टॉल्ड। जैसा आज ऑफिस 365 इंस्टॉल आता है, उस तरह उन दिनों में एक माइक्रोसॉफ्ट मनी करके आ गया था, जो अब माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दिया प्रोडक्ट। सिंस 2006 आई वाज अपलोडिंग ऑल माय बैंक स्टेटमेंट्स इन दिस सॉफ्टवेयर। ऐसे ही कर रहा था, थोड़ा टेक्नोलॉजी में था, कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव था नहीं, क्यों कर रहा है वो भी पता नहीं था, बस इतना था कि एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई यूज्ड टू गिव पासबुक इन अ माइक्रोसॉफ्ट मनी फॉर्म। उसका अलग फॉर्मेट होता था और वो भी मिलता था। आज आज तो ऑब्वियसली बंद कर दिया उन्होंने, बट उस टाइम पे होता था। सो यू कुड डाउनलोड इन अ मनी फॉर्मेट एंड यू कुड अपलोड इन द सॉफ्टवेयर, तो ज्यादा कुछ था नहीं। बट द एडवांटेज ऑफ 2011 में व्हेन आई गॉट सीरियस, ओके, व्हाट हैपेंड वाज, थैंक्स टू दिस एक्टिविटी, यू कॉल इट हॉबी एक्टिविटी या जो भी बोले, मेरे पास 6 इयर्स का पूरा बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड investment data. Investment was only fixed deposits. Everything was available in Microsoft Money, right? One place जहाँ पे पूरा 6-7 साल का each individual expense was available. बैंक में जो भी डेबिट क्रेडिट है सब होता है। उस पे फिर I started analyzing that and I came up to a certain structure, okay, which is what I have highlighted in my book. That हर कैटेगरी का एक बिहेवियर होता है, मतलब एवरी एक्सपेंस का एक बिहेवियर होता है। सब एक्सपेंस एक तरह नहीं होता है। इक्विटी क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, एंड ऑल दिस स्टार्टेड स्टडिंग एंड देन आई रियलाइज एवरी इन्वेस्टमेंट आल्सो हैज अ कैटेगरी, हैज अ बिहेवियर। अब आई रियलाइज कि ये एक्सपेंस कैटेगरी और इन्वेस्टमेंट कैटेगरी को मैच करना चाहिए। यू कैन नॉट फंड एक्सपेंस जिसका बिहेवियर फिक्स्ड है with a investment जिसका behavior volatile है। Okay, so I came up with 6 categories and I started matching it. और जैसे जैसा मेरा एक एक टिक होते गया, I started ticking off those expenses कि आज इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो गया है, 2 महीने बाद मोबाइल बिल फ्री हो गया है, 6 महीने के बाद पेट्रोल फ्री हो गया, मतलब फ्री मतलब पेट्रोल का अभी खर्चा यहाँ से आ रहा है, इन्वेस्टमेंट से आ रहा है। ओके, एंड 2019, so almost 10 years since I started, right? Finally जो मेरे रेगुलर एक्सपेंसेस थे वो सारे टिक ऑफ हो गए। ओके, एंड दैट इज व्हेन आई से आई डिडंट नो द टर्म फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वो उस टाइम पे इतना बिग टर्म नहीं था, बट दैट इज व्हेन आई बिकेम व्हाट टुडे वी कॉल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। इसी डायरेक्शन में अगर हम चले तो आपका पर्सपेक्टिव सक्सेस और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेके इन ओवर द इयर्स, ये जो 30 इयर्स है, इवॉल्व कैसे हुआ? See, earlier it was purely corporate success was defining life. That's how we all start, right? बस रात को 12-1 बजे तक ऑफिस में काम कर रहे हैं ड्यूरिंग द अर्ली इयर्स, राइट? सो व्हेन आई क्रॉस्ड 50 almost 2 years back, then came another perspective, and then there was another friend of mine who on his 50th birthday, जब सुबह सुबह उठा and he looked in the mirror and he said, यार 50 साल हो गया, किया क्या? He was in one of the largest companies of India. So on the 50th birthday, he gifted himself a resignation. एक साल उसने बैकपैक किया, इंडिया के जितने सिटीज विटीज है, एक साल वो ट्रेन में घुमा, वो भी फ्लाइट वेट नहीं, वो ऑफ कोर्स घूम के आते हैं, सोचते हैं करना क्या है। एक साल के बाद ही रियलाइज ही लव्स कुकिंग। ओके, टुडे ही रन्स अ ब्रेकफास्ट वेंचर। वेदर ही इज मेकिंग बिग मनी एज ही वाज मेकिंग कॉर्पोरेट लाइफ, अभी तक नहीं। ओके, बट या ही इज हैप्पी डूइंग व्हाट ही इज डूइंग। नाउ ही फील्स कि यार ठीक है, दिस इज व्हाट आई ऑलवेज वांटेड। सो आई सेड, let me also think what is it that I actually want to do. COVID came just before I turned 50. So COVID में मैंने break ले लिया था. So that also gave me some thinking. Teaching I was always doing, almost now अभी almost 8-10 साल हो गया है. Like I said, I have not given up corporate life. I did get अभी भी a few offers come through, but I am looking for that passion. Okay, there has to be a reason apart from money for me to take that job. Okay, which I have not yet got that reason.
वाओ! आई थिंक हम बहुत सारे लोग आपने जो स्टोरी बताई है उससे तो काफ़ी जैसे आप इम्पैक्ट हुए, आई एम श्योर देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हू गोना गेट इम्पैक्टेड बाय दिस। अम, चलो एनीवे मूविंग ऑन। अब थोड़े अगर हम फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलें, तो आप पैसिव इनकम को कैसे डिफाइन करोगे? पैसिव इनकम, लेट्स जिस तरह मैं देखता हूँ, ओके, इट इज अ वन टाइम एक्टिविटी, इट इज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट जिससे आपको कांस्टेंट मनी आएगा, वेदर इट इज अ फिक्स्ड मनी और रिटर्न और अ वेरिएबल रिटर्न, वो डिपेंड्स, ओके। वन टाइम इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मनी, इट कैन बी टाइम, इट कैन बी एफर्ट, ओके, लाइक द बुक आई हैव रिटर्न, इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, मतलब आठ आठ 10 महीना लगा एक बुक लिखने को, सेकेंड बुक प्रॉबली हैपन थोड़ा जल्दी हो गया, बट ये एक बार कर दिया। अब जैसे जैसे वो बिकता है, someday I might be famous, it might be best selling, okay, but जो भी बिकता है I get my royalties. I get my royalties, so that's a passive, okay. अब passive का मतलब ये नहीं है कि बस करके छोड़ दो, there is nothing in life called 100% passive। थोड़ा बहुत अभी फिक्स डिपॉजिट भी, इफ यू पुट अ फिक्स डिपॉजिट फॉर 5 years, 5 साल के बाद जब मेच्योर होगा तब आपको आधा घंटा तो बिताना होगा, right? So there is nothing called passive. When we talk of financial independence, there are some, like I said, there are some mandatory expenses. Okay, these are the mandatory expenses which are beyond your control. Electricity, grocery का खर्चा, चलो ठीक है यार, you may not have some रोज घी डाल के नहीं खाओगे, बट एटलीस्ट दाल चावल तो खाओगे, right? आज थोड़ा शॉर्टेज है तो मे बी आज घी अवॉइड कर लोगे, उतना पैसा बच जाएगा, बट कुछ चीजें जो यू कांट अवॉइड, ओके। दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज विच यू डोंट हैव कंट्रोल ऑन, ये सारे आइडियली शुड बी पैसिव इनकम फंडेड। सो पैसिव इनकम में डोंट लुक एट इट कि सब कुछ पैसिव होना चाहिए, राइट? ओके, इधर ही पब्लिक मार खाते हैं। Is it important for financial independence? Yes. Okay. So what I said was there are 6 types or 5 types of expenses. There is one that is critical to survive. ये तो आपको करना ही है, ये इसके बिना आप जी नहीं पाओगे। इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भरा तो वो आके पावर काट के गए। देयर आर एक्सपेंसेस जो जॉब रिलेटेड, आप मानोगे नहीं, अगर आप इसको कैटेगराइज करने जाओगे, यू विल रियलाइज लॉट ऑफ योर एक्सपेंस इज एक्चुअली जॉब रिलेटेड। I was shocked. I was not shocked, I was surprised. Okay. I'll give you an example. I'm a foodie. So I always go out, even when office canteen था, office canteen में 25 रुपये में lunch मिलता था subsidized, but I always used to go out. Okay. And there was a group of friends जिसके साथ मैं बाहर जाता था. And uh, per day expense typically used to range around 1,000, 1,500 lunch का. Okay. Which मतलब महीने का 20-25 हजार तो सिर्फ लंच पे जाता था। यस। एंड जब जब मैं कॉर्पोरेट लाइफ में था तो ये तो मेरे लिए, आई यूज टू लुक एट इट एज अ मैंडेटरी एक्सपेंस, मेरे को पता भी नहीं था कि इतना एक्सपेंस होता है, बट सिंस द डे आई गेव अप कॉर्पोरेट लाइफ, सडनली 25 हजार सेविंग्स आ गया, मतलब ना सेविंग्स गलत है टर्म, मतलब 25 हजार का एक्सपेंस कम हो गया मेरा, राइट? और पब्लिक क्या करता है, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस यू विल ट्राई फंडिंग दिस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ये 25 हजार को अगर मुझे फंड करना है तो आई विल नीड एटलीस्ट, आई डोंट नो व्हाट, 8-10 लाख लगेगा, मे बी मोर देन दैट, ओके, मे बी मोर देन दैट टू फंड 25,000 जस्ट फॉर माई फूड। बट जिस दिन मैंने जॉब छोड़ दिया, इस वाले का तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। देन देर आर एक्सपेंसेस दैट यू कैन रिड्यूस। अभी 6 मूवी देखते हो, या चलो एवरी वीकेंड में एक मूवी देखते हो तो 4 मूवी हो गया महीने का, किसी किसी महीना 3 देख लिया तो क्या फर्क पड़ेगा। देन देर आर एक्सपेंसेस दैट यू कैन डिले, जैसा गाड़ी लेना है, ठीक है, तुम अगले साल ले लो या उसके बाद ले लो। और कुछ एक्सपेंसेस है जो आप मजबूरी में, मतलब चलो जरूरत पड़े तो इसको एलिमिनेट ही कर सकते हो, मतलब करना ही नहीं है ये एक्सपेंस, राइट? व्हेन आई डू माय वर्कशॉप, ओके, आई लुक एट एवरी पर्सन वेयर व्हाट स्टेज दे आर इन, एंड आई से अगर तुमको ये शूज लेना है, दिस इज अ जॉर्डन, नाइकी जॉर्डन, अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपीज का आता है, राइट?
बोला अगर मुझे मैं इस जब शू को देखता हूँ तो मेरे लिए तो ये एक्सपेंसेस दैट कैन बी अवॉइडेड में आ सकता है, राइट? जब मेरा डॉटर ये देखता है, शी जस्ट स्टार्टेड कॉलेज, फॉर हर्स दिस इज अ क्रिटिकल टू सर्वाइव। ओके, नाउ ये एक बार आपने कैटेगराइज कर लिया, इसके बाद यू हैव टू कैटेगराइज हाउ ऑफन दिस एक्सपेंस कम्स। इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीना आता है। ओके, इंश्योरेंस का प्रीमियम, लेट्स से मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम वंस अ क्वार्टर, अगर आपने क्वार्टरली पेमेंट ले लिया है। प्रॉपर्टी टैक्स आता है वंस अ ईयर। ओके, गाड़ी लेना है, दैट प्रोबेबली यू विल डू once in 5 or 6 years. Okay, you will replace a car, right? So again, everyone has their own stuff. Now once you have this categorized, इसके बाद you look at what is the investment. अब हर इन्वेस्टमेंट का एक बिहेवियर जैसा होगा ना, हर एक का एक एक आइडेंटिटी होता है। अभी पोस्ट ऑफिस एमआईएस ये आपको मंथली दे देगा, 5 साल के लिए होता है, वॉलेटाइल नहीं है, एक बार आपका फिक्स हो गया तो आ गया बस, एवरी ईयर उतना ही आने वाला है, मतलब एवरी मंथ तो फिक्स्ड अमाउंट आएगा, राइट? एक लॉक इन पीरियड होता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल को अगर पैसा मरता है तो तुमको मिलेगा नहीं मिलेगा, राइट? एंड टैक्स, टैक्स चलो ये तो थोड़ा एडवांस डिस्कशन है, बट राइट नाउ लेट्स फोकस ऑन इनकम, राइट? देन बैंक एफडी होता है, देर इज, अगर जल्दी क्लोज कर ले तो एक एक दो टक्का इन कुछ पेनल्टी मारते हैं, बट दैट यू कैन ओपन इट फॉर 15 years also. And what we need to do is we need to identify uh, based on the expense category कि इसमें से कौन सा उसमें फिट होता है, राइट? नाउ फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट जो एक्सपेंस हम रिड्यूस कर सकते हैं, जैसा मूवी का एक्सपेंस है, सिंस वी आर टॉकिंग दैट, नाउ आई कैन पुट इट इनटू म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड जो कॉर्पोरेट डेट डेट फंड्स है, राइट, आई कैन पुट इट देयर। आई कैन आल्सो पुट इनटू अ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गिल्ड फंड्स, ये भी तो फिक्स्ड इनकम ही है, दे विल गिव यू समथिंग, बट चैलेंज यहाँ पे होता है कि ऊपर नीचे चलते रहेगा। क्रिटिकल टू सर्वाइव आप फिक्स्ड इनकम करोगे, दिस विल बी योर पैसिव इनकम, राइट? क्रिटिकल टू वर्क, ये आइडियली सैलरी से आएगा, बिकॉज तुमने जिस दिन जॉब छोड़ दिया ये एक्सपेंस वैसे एलिमिनेट हो गया। आपका गाड़ी का पेट्रोल, आधा आधा से ज्यादा माइलेज तो जॉब के लिए होता था, राइट? तो उतना पेट्रोल की जरूरत नहीं है। एक्सपेंसेस दैट कैन बी रिड्यूस फंडेड बाय म्यूचुअल फंड, एक्सपेंसेस दैट कैन बी डिलेड बाय इक्विटी, एंड इसके अलावा कभी किसी दिन लॉटरी लग गया या कुछ फ्री मनी आ गया तो चलो, जो जो हमने अवॉइड किया था, जो फॉरेन ट्रिप अवॉइड किया था, लेट्स डू दैट। ओके, सो दिस इज द हाउ वी अप्रोच। ओके, सो आई ऑलवेज टेल पीपल, मतलब सब कुछ इक्विटी में डालोगे, प्लीज अंडरस्टैंड आप कर क्या रहे, right? And nothing is guaranteed in life, including the job. Okay, so long answer, but like I said, passive income is required. You can't be financially independent without passive income. आपने क्या फर्स्ट स्टेप्स लिए थे? कोई ऐसी कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हो जो आपने इनिशियली करी हो? शुरुआत में इट वाज ओनली फिक्स्ड डिपॉजिट। मेरा नॉलेज उतना लिमिटेड था यार, ऐसा नहीं था कि शेयर या म्यूचुअल फंड नहीं था मार्केट में। इट वाज ओनली फिक्स्ड डिपॉजिट्स। 2011 when I decided that it has to be a proper structure, that time I got into mutual fund and equity, but still it was predominantly mutual funds. Okay, equity was not very big. Okay, I think equity में मैं कैसे घुसा? I read this book called How I Made $2 million या $1 million, जो निकोलस डार्वस का जो बुक है, right? And I was already in software, even though I was in sales. Technically, I was नहीं, I am strong, very strong on the technical aspect. And तो मैंने क्या किया, एक्सेल में एक छोटा सा प्रोग्राम लिख दिया। छोटा नहीं था, काफी डिसेंट था, बट प्रोग्राम ये करता था, याहू फाइनेंस से स्टॉक मार्केट का डेटा लाता था, निकोलस डार्वस का जो डार्वस थियरी है उसके बेसिस पे वो पूरा प्राइस को एनालाइज करता था, और फिर उसको इट यूज टू गिव मी अ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स टू बाय और सेल। ओके, तो छोटा छोटा करते रहता था मैं, बट नॉट अ वेरी बिग थिंग, इट वाज मोर लाइक अ हॉबी फॉर मी। ओके, आई नेवर सॉ इट एज अ बिग इन्वेस्टमेंट।
Majority तब तक, I'll tell you, till 2018 I was predominant, मतलब you can say almost 80% of everything was either in fixed deposit or in a mutual fund, or all over the world, okay. Every month जाके एक नया fixed deposit खोलता था. At one time I remember I had more than 65 receipts. Okay, वो रसीद रखने के लिए मेरे पास एक अलग कैबिनेट था to keep all the fixed deposit receipts. आज के दिन में everything is soft copy, life is easy, but those days it was paper copies, right? So uh, it was very complex, but everything was in that software, so इतना मुझे इतना कॉम्प्लेक्स नहीं. और मेरा सारे लॉन्ग टर्म एफडीज होते थे, कोई ऐसा 6 महीना एक साल का नहीं होता था. मतलब जितना मैक्सिमम मिले, 10 साल 15 साल का अगर बैंक दे रहा है तो 15 साल का ले लेता है. आजकल तो आई थिंक बियॉन्ड 10 years they don't give. So nowadays most of my FDs are 10 years. Okay. सो कोई ऐसा इंटेलिजेंट नहीं था. आई एम सॉरी अगर पीपल फील डिसअपॉइंटेड, बट मेरा ऐसा कोई ग्रेट अल्टीमेट मैजिकल पोर्टफोलियो नहीं था. ओके. बट एवरीथिंग वाज टैग टू अ एक्सपेंस. एक फिक्स डिपॉजिट रसीद नंबर, इलेक्ट्रिसिटी बिल. एक रसीद से तो होता नहीं था, तो 4-5 रसीद नंबर वो इलेक्ट्रिसिटी को टैग किया जाता था. ओके. Then 2018-19, like I told you, is when सारे expenses tag हो गए. कुछ फिक्स डिपॉजिट से हो गए, कुछ म्यूचुअल फंड से हो गए, कुछ थोड़े रेंटल इनकम भी आते थे, तो वो भी टैग कर दिए मैंने कहीं पर, राइट. एंड जब 19 के बाद आई was not touching my salary, and that is the time I entered the stock market. बट उस टाइम पे एक फ्लॉ था थिंकिंग में. सोच ऐसा होता था, हार लॉस हो गया ठीक है, कोई बात नहीं है. अब ये 6 दिन बचा है, पगार आ जाएगा वापस, राइट. आज आई रियलाइज दैट इज अ वेरी बिग मिस्टेक. डोंट ट्राई टू फंड द लॉसेस विथ योर सैलरी. बिलीव मी, टिल 2021 इन द कोविड ब्रेक आई डिड नॉट रियलाइज कि यार इसमें भी है ना स्टडी करना. ये जो यहाँ वहां से सुन के रिपोर्ट पढ़ के पैसा नहीं बनता. You have to learn. Then started my trading journey. 2021 के बाद मेरा ट्रेडिंग जर्नी हो गया. 2019 के बाद I started buying stocks, because तब तक मेरा I was so called financially funded, right? All my expenses were funded. तो अब क्या करना है? अब सैलरी तो आ रहा है, जरूरत नहीं है. एंड ये कंसेप्ट था कि अगर time is not a constraint for your expense, then stock market is a good place to park the money. So okay, so everything used to go into the market. Okay, so 2019 mein I was probably 80% fixed income, fixed deposit, mutual fund, little bit of real estate for rental income, and 10-15% stocks. वो भी मैं बता रहा हूँ क्यों है, because I was in TCS जब TCS का IPO आया. ओके. सो जो ये जो 10% मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक्स में था, वो बेसिकली वो टीसीएस के आईपीओ वाले शेयर्स थे. ओके, बिकॉज एज एन एम्प्लॉय हमको वी हैड गॉट एलोकेटेड शेयर्स, नॉट ESOPs, बट वी हैड टू बाय, बट वी हैड एन एलोकेटेड शेयर. तो वो जो तब का लेके रखा था वो बस था ही, मतलब देयर इज अ सेंटिमेंटल रीजन फॉर इट. अभी तो नॉस्टैल्जिक रीजन है, उस टाइम पे सेंटिमेंटल था कि यार 10 साल निकाले टीसीएस में, तो मतलब रहने दो याददाश्त के लिए, राइट. सो वो, so that was my 10-15% of my corpus which was there. But 2019 के बाद everything has gone into the markets. Today I am almost 50-50. They say that जैसे आपका एज बढ़ते जाएगा आप इक्विटी में कम करते जाओ, राइट. बट आई से द उल्टा. ऐसे अगर एज बढ़ते जाएगा और तुम्हारा नॉलेज बढ़ गया है, in my case it's the other way around. As I'm increasing in age, my, actually you can say I am 52 and I am 52% equity. तो जब हम लोग ऐसे फिक्स्ड इनकम सोर्सेज की बात करते हैं,
इन्फ्लेशन भी तो अकाउंट होता है, लाइक इट्स ऑल्सो कंसर्न फॉर सम पीपल, है ना? तो फिर अगर आप पैसिव इनकम हमारी बढ़नी चाहिए, अगर हमें यही है कि वी हैव टू इंश्योर कि पैसिव इनकम कंटिन्यूज टू ग्रो, तो राइजिंग कॉस्ट्स के साथ साथ वो कैसे मैनेज करें? Now, let me put 2 3 points. Okay, सबसे पहला, uh, we are in a knowledge economy. You and me are paid for our mind power. We are not paid for labor. Okay, we are not factory workers जो एक पर्टिकुलर असेंबली लाइन की स्पीड पे काम कर रहे हैं. तो एक टाइम के बाद द बॉडी विल स्लो डाउन. व्हेन द बॉडी स्लोज डाउन, you are a risk to the assembly line, right? Because if one person is slowing down, it will impact the entire line. So, and obviously, you will then be replaced with a young guy who can keep up with that speed, right? We are the mind generation. We are paid for our thinking. Our mind will never tire. Okay. तो हमारे लिए it will never happen that you will never stop earning. In fact, you should not stop earning. That is, let's put it this way. आप अर्निंग कभी बंद नहीं करना चाहिए, बट अपना माइंडसेट ऐसा है, एटलीस्ट माय जनरेशन, यू आर द यंग गाइस, बट माय जनरेशन का माइंडसेट है, पब्लिक को लगता है बस 60 इयर्स तक जीना है, इसके बाद हम रिटायर हो जाएंगे और फिर लाइफ एंजॉय करेंगे, राइट? इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंकिंग. सो दैट इज वन. सेकंड, नाउ लेट्स लुक एट इन्फ्लेशन, राइट? थिंग का कॉस्ट बढ़ते जा रहा है. Now, this is coming after 4 5 years of experience, right? What I was spending in 2019, दो चीज हुआ है. एक तो the things on which I was spending वो change हो गया, right? Uh, those multiple exotic vacations don't happen. साल में एक हो जाता है. And with everybody now in different schedule, वो logistics भी अभी maintain नहीं हो रहा है. पहला क्या था, बच्चे स्कूल में थे तो स्कूल के वेकेशन हो गए तो हम भी वेकेशन अप्लाई कर लो, चले जाओ, राइट? अब एक स्कूल में, एक जॉब में, एक कॉलेज में, राइट? सो हर एक का वेकेशन डेट्स भी अलग अलग होते हैं, राइट? हाँ, सो वो जो थिंग्स दैट यू स्पेंड ऑन टुडे, आज जो आप इस पे खर्च कर रहे हो, मे और मे नॉट बी टुमारो. देयर माइट बी अ डिफरेंट थिंग. सेकंड, द थर्ड आइटम इज, जैसा मैंने बताया था, मेरा एक्सपेंसेस एक्चुअली आई हैव सीन इट रिड्यूसिंग. सो लाइक आई सेड, अभी लंच एक्सपेंस तो निकल गया, वो तो हमने देख लिया, 25,000 तो इसी सेव हो गया. डॉटर इज हैज नाउ गॉट अ जॉब, शी इज फिनिश्ड हर एजुकेशन, शी इज बिकम इंडिपेंडेंट, सो उसके भी खर्चे कम हो गए, राइट? वी डोंट ट्रैवल टू मच, सो दोज एक्सपेंसेस आर आल्सो डाउन. And let's face it, after at this age, I'm also from a foodie, I'm become a semi-foodie now because obviously the body can only handle so much food, right? Uh, so slowly करके these expenses are coming down. So now we come to your question, right? एक तो expenses will some expenses will change, कुछ expenses reduce हो गए, कुछ expenses नए भी आएंगे, right? अब inflation जो बोलता है, ये गवर्नमेंट का इन्फ्लेशन, जैसा मैं बोलता हूँ, गवर्नमेंट का इन्फ्लेशन पब्लिक के लिए होता है. आपको आपका इन्फ्लेशन देखना है, आपका खर्चा कैसे बढ़ा. डोंट लुक एट कि गवर्नमेंट बोलते 6% है तो मतलब क्या आपका एक्सपेंसेस 6% बढ़ा है. एंड अगेन, इसमें से कौन सा एक्सपेंस आपके कंट्रोल में है और कौन सा नहीं है. जो कंट्रोल में नहीं है वो पैसिव इनकम से होगा, एंड दैट इज ऑलवेज एक्सपोज टू दिस रिस्क कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, passive income will not keep up, right? And this is where I say you cannot stop earning. Earning आपका चलते रहेगा, right? Second is, some things you may not spend today. आज आप खर्चा कर रहे हो, कल नहीं करोगे. So that money can be routed to the expenses जो है आज, right? Uh, there's obviously certain dangerous scenarios, but I mean, चार आदमी को साथ में बिठा दो तो सारे डेंजरस सिनेरियो आ जाएगा, राइट? कोई बोलेगा यार मेडिकल इमरजेंसी, ये आ गया, वो आ गया. यार देखो, ऐसा है कि हर जगह पे खतरा है.
आप क्या उसके डर से घर पे बैठोगे? नहीं, राइट? आ गया इमरजेंसी आ गया तो आ गया है, तब देख लेंगे। बट मेडिकल इमरजेंसी आ गया करके आज से सब कुछ डर डर के जीना, तो वो डर डर के जीने में मेडिकल इमरजेंसी आ ही जाएगा, राइट? So you're actually calling the medical emergency by living in stress today. Okay, so this is the way I look at it. तो फिरोज़ अब बात करते हैं हम थोड़ी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, फाइनेंशियल प्लानिंग इन सब के बारे में। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऑर्गनाइज़ कैसे करते हो? लाइक व्हाट डज़ योर पोर्टफोलियो जनरली लुक लाइक इन टर्म्स ऑफ से एलोकेशन? Eventually, see, I have come down to now फिक्स डिपॉजिट्स तो म्यूचुअल फंड वो सब एक बकेट हो गया जो मेरे एक्सपेंसेस मैनेज कर रहे हैं, राइट? अब इक्विटी में आफ्टर ऑल दैट आई हैव कम डाउन टू वन थिंग। ऐसे सिंपल सा लॉजिक होता है मेरा। ये जो भी बड़े बड़े फाइनेंस कंपनीज है, ओके, ये लोग सब रिसर्च करते, दे फाइंड अ गुड कंपनी, दे पुट मनी देयर। उनको भी क्लाइंट का पैसा प्रोटेक्ट करना होता है, so they also want to protect their own jobs, because if they lose money obviously they will lose their jobs, right? एंड इनका सबका मसल पावर सेम है इन टर्म्स ऑफ द इंफॉर्मेशन जो वो लोग ले सकते हैं। दे कैन मीट द सीईओ, दे कैन मीट द मैनेजमेंट, दे कैन डू व्हाटएवर रिसर्च। अब किसी को अगर एक कंपनी मिल गया, चांसेस आर कि वो कंपनी चार पांच और पब्लिक को भी मिल जाएंगे, फर्म को, राइट? एंड दे विल ऑल बाय इनटू इट। सो व्हाट विल हैपन टू दैट कंपनी? मार्केट कैप बढ़ जाएगा। जब मार्केट कैप बढ़ेगा वो क्या होगा? इट विल गो हायर अप इन द रैंकिंग। इवेंचुअली वेयर आर द टॉप कंपनीज? दे आर ऑल इन निफ्टी 50, ओके? एंड निफ्टी 50 के बाद भी उसके भी टॉप कंपनी होने जो निफ्टी के टॉप 10 है, ओके? सो विद दैट थिंकिंग आई हैव बीन, जो मेरा इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है विच इज माय लॉन्ग टर्म होल्ड, हैज ओनली बीन इन द टॉप 10 कंपनीज ऑफ निफ्टी। ट्रेडिंग अगर करना है तो ट्रेडिंग हैज टू बी डन इन द निफ्टी 50। Among my stock holding, I would say about 90% is Nifty 50. Another category of investment that I have is real estate. Okay, real estate is flats and shops. What I'm doing now is I've already sold off one of the properties. I'll probably, I don't know, at some point I might sell off more, and I'm moving that money into REITs. ओके, तो ना मेंटेनेंस का हेडेक है, ना ब्रोकरेज का हेडेक है, ना कमीशन का हेडेक है, ना टेनेंट का हेडेक है। एंड फ्रॉम अ मनी पर्सपेक्टिव आई एम गेटिंग डबल फ्रॉम द REITs, आई एम गेटिंग डबल व्हाट आई वाज गेटिंग एज अ रेंट। ओके, तो रिटर्न्स भी बढ़ गया है। सो दैट इज अनदर थिंग दैट आई एम लुकिंग एट। हाँ, थर्ड इज आई एम मूविंग अ लॉट ऑफ माय मनी इनटू गवर्नमेंट बॉन्ड्स, which was something 2 साल पहले I was not aware of. Okay, today I tell youngsters not to put into fixed deposits, but put it into government bonds for a long term. Okay, so I have जो भी अभी मेरे फिक्स्ड इनकम मैच्योर हो रहे हैं, instead of renewing it, I am taking that money out and I'm buying guild funds. There is another reason I'm putting it into government funds is because I've also realized you can pledge it. Pledging भी सीख गया मैं, and pledging को लेके अभी using that margin I've also learned a little bit of future trading. Okay, uh, it's taken a long time. Okay? It's taken more than 2 years to come to the stage, but touch wood, I can say right now is this year we are sitting in November calendar year, from Jan to now December, I have almost 100% return on the margin that was deployed. Okay, so that is becoming another diversification. तो फिरोज़ हमने मल्टीपल इनकम सोर्सेज़ की बात करी, कैसे आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज़ से इनकम आ रही है। तो आप अपने इन सारे इनकम को, इस सारे एक्सपेंसेस को मैनेज और मॉनिटर कैसे करते हो? मतलब हाउ डू यू स्टे ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग? The expenses जो है, living expenses, okay, they are all now being paid out of one single bank account, right?
and all my fixed deposits, dividends, and mutual fund का जो भी returns आते हैं, they all come into that single account. They've all been redirected. Okay, and जो भी expense करना है wife के जो GPay account है, that all is linked to that same account. Okay, so अभी माइक्रो मैनेज करने का दिन मेरे चले गए. So good thing is over time the expenses are less than the income that is coming in. तो जो पहला जो मैं इलेक्ट्रिक बिल, फिक्स डिपॉजिट रसीद, सो एंड सो करके जो नोट करके रखता था, उसकी अब मुझे जरूरत नहीं है. टुडे इट इज अ वेरी सिंपल लाइफ फॉर मी. ओके, जस्ट वन बैंक अकाउंट, वही से सारे पेमेंट होते हैं. जब तक उस अकाउंट में जीरो वैल्यू नहीं है, मतलब देयर इज समथिंग आई नो दैट एक्सपेंसेस आर कवर्ड. ओके, या इट्स बीन नाउ 3-4 साल हो गया है, उसमें जीरो वैल्यू नहीं है, तो आई एम प्रेटी सेफ. आई कीप वन म्यूचुअल फंड सेपरेट. इमरजेंसी में किसी दिन जीरो हो गया तो वो म्यूचुअल फंड से आई विल डू सम मनी. ओके, द रिमेनिंग आर ऑन SWPs राइट नाउ. So I think I saw this video of this guy called Gajendra. I think he was also on your channel. Okay, I wish that interview was recorded 25 years before. Okay, yeah, I would have been at a different stage. But ठीक है. One cardinal rule I had, एक रूल मेरा फिक्स था, जो भी हो जाए प्रिंसिपल को लिक्विडेट नहीं करना. नेवर take out the money that you have invested. अगर वो even if you realize that that was a wrong investment. अभी FD खोल दिया 6% पे, पता चला कहीं पर 8% मिल रहा है, no issues. If I have to put money in that 8%, मैं वो 6% को बंद करके वो पैसा 8 में नहीं डालेगा. I will अलग अलग collect more डाल. money. या No, I'll collect more money. The next salary maybe will go into the 8%. करेक्ट. उस तरह. Okay, and the good thing उसमें क्या हो गया कि since I'm not touching principal, the principal has been growing very fast. While I've been always interest और वो सब कुछ लेके मैं अपना expenses कर रहा था, तो technical जो compounding बात कर रहे हैं, गजेंद्र बात करते हैं compounding का, so that has I have never had compounding on the investment. But जैसा for example अभी समझो 3,000 का electricity bill है, मेरा deposit आ गया 3,000, मेरा cover हो गया. तो अगले महीने I have 3,000 extra from my salary that I can deposit. Okay, so that is how I reached a stage where 100% salary was going into investments. So, Firoz, how do you think financial independence actually impacts a person's sense of, say, overall confidence? Let me start by giving my own example, right? So I was after 2019, that's the only hint I can give. Uh, I was at a company working on a package of 1.5 CR. And like I told you, 2019, I was already independent, financially independent, right? Uh, then I came across somebody who was doing a project, India mein. I can't mention the project, but it was a new business that he was starting, and it was never been done in India. Okay, so he said he was looking for somebody to do that, and I also wanted to do that project. Okay, but ऐसा था कि उसका budget बहुत कम था. He had, I mean, there was money for setting up the business, not money to pay some exorbitant salary. Okay, तो मैं बोला देख यार project तो करना है मुझे. I want to set up that business. And he said, I also want you to do it because I have done that in the past in my corporate life. Okay, but अभी वो startup करके करना था as a fresh business. बोला तेरे पास background है, तूने किया है, but I cannot pay you the salary that you are currently drawing. तो बोला एक काम करते हैं, मेरा घर का खर्चा 1.5 लाख है, give me just that much. Okay, and so tax breaks करके eventually we drew up a package of 24 lakhs. Okay, and I joined it. From a 1.5 CR, I had no hesitation to join him.
and at 24 lakhs. And we did the project, but the story का moral ये है कि if I was dependent on even 1 rupee of that 1.5 CR, I would not have this confidence to leave that and join a package which was 1/6, 6 times का पैकेज छोड़ के मैं इधर इधर आ गया. Okay, so financial independence basically gives your mind a stability. Okay, now again we go back to that same story. अगर आपका passion, why and what you want to do is very clear. Okay, financial independence will give you that courage to do what you actually want to do. Okay, it's a different confidence that you get. अब थोड़ा फ्यूचर गोल्स की तरफ आते हैं बिकॉज सिंस आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है पैसिव इनकम है तो फॉर द लॉन्ग टर्म हाउ डू यू थिंक अबाउट सस्टेनिंग इट मतलब आर यू कॉन्फिडेंट इन योर सेटअप कि वो आपको लॉन्ग रन में आपके साथ आपकी पैसिव इनकम चलती रहेगी अभी किस टाइम तक Okay, I will confess, ज्यादा लॉन्ग टर्म मेरे पास विजिबिलिटी नहीं है. तो अगर आप पूछोगे 10 साल बाद आर यू कॉन्फिडेंट, आई डोंट नो द आंसर. ओके, द नेक्स्ट फ्यू इयर्स आर यू कॉन्फिडेंट, आई विल से यस. ओके, लाइक आई सेड, जो एक्सपेंसेस वाला लाइफ है वो मोर और लेस फ्रोजन हो चुका है. ओके, अभी क्वेश्चन है इसके बाद क्या करना है, मतलब व्हाट नेक्स्ट. सो academics में I'm getting slightly more in involved now. Uh, After I wrote my first book, second book was very interesting. मतलब अभी एक बार लिख लिया तो वो प्रोसेस भी समझ गया कि एक बुक लिखना मतलब क्या होता है, राइट अप टू पब्लिशिंग इट. ओके, मेकिंग इट अवेलेबल. सो द थर्ड बुक इज आल्सो देयर. समवेयर मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि हर साल एक बुक लिखना है. ओके, ऑन सम और द अदर टॉपिक. तो दैट इज वन. I also intend to get myself SEBI registered. अभी नहीं हूं मैं. ओके, ये जो फिनेंशियल नॉलेज मेरे पास है, इट may नॉट बी द बेस्ट, बट मुझे लगता है कि जो भी मेरे पास है, इट इज स्टिल बेटर देन मोस्ट ऑफ द पीपल who are desperately trying to achieve something. Okay, so I see that also as a potential career for future, as a financial advisor. Okay, the fourth one is not taking too much time, but I think it's a very exciting thing. Is I've put some goals for my trading profits. Okay, जैसा knowledge बढ़ते जा रहा है, I've seen profits increase. So my first goal now is अभी तक मेरा expenses was through passive income, all the fixed income things that I put. I am looking at a goal where the same amount can now be got from my trading activities. परफेक्ट सो इसी पे एज अ एज एन एडवाइस टू अ न्यू कमर हु इज जस्ट एंटरिंग दिस इन्वेस्टमेंट जर्नी फाइनेंशियल जर्नी उनको आप क्या एडवाइस दोगे Okay, so I tell them that one is start, investment start करो, भले 100 रुपए से करो लेकिन शुरू करो. Okay, focus on your specialization, focus on things that is going to increase your salary. Keep your investment very small. Don't get distracted by all these multi-bagger stories. Okay, possible hai, will require a lot of investment, but you are not at a stage now to make that investment. You might see a 20-year-old guy who's making crores in stock market, right? But India is 150 crore population. उसमें तुम एक बंदे को लेके सोचता है कि भैया मैं भी ये बंदा बनेगा, मे बी यू विल बिकम, आई डोंट नो, बट व्हाट आर द चांसेस दैट यू विल नॉट सी. द मेन थिंग ऑफ स्टॉक मार्केट इज पहले रिस्क को कंट्रोल करो. व्हाट इज द रिस्क इफ यू डोंट बिकम दैट गाय? व्हाट इज द रिस्क इज you have messed up your complete career, right? तो पहला प्रिंसिपल ऑफ स्टॉक मार्केट को ही तुमने वायलेट कर देते हो, right? So don't get distracted by. There will be time. See, I started my stock market journey when I was 48, 4 years back. Today I'm 52, right? Some things, some good results I can showcase to people. I've also made losses initially, but today there are some results I can showcase to people, right?
there will be time afterwards. Okay, some people start in mid 30s, some people start in mid 40s. Okay, some people start like me, start very late now. Okay, uh, don't get distracted by all this. There will be time afterwards when you will have enough money and you will have enough time to get to learn and get into it, right? Abhi ke liye focus on your career, focus on how your earnings can increase. That is what is going to compound in future. Viewers would get some nuggets which will be useful for them. Unfortunately, I am not on social media, but on my website, there is a contact email ID. If somebody wants to talk, yeah, I'm available. Okay. And if somebody puts a comment, I will make sure that I answer. Definitely answer the comments which are worth to be answering. Okay. So feel free to provide the comments, and whatever small value add input that you could get from this discussion. Like I said, I'm not the best fund manager. I am not the best advisor in the world, but I'm just somebody who learned along the way. And I think that's what we all want. We want to learn from people who just like us, who just, who watched videos, learn new things every day. The learning curve has to improve and go up, and that's the way to do it. Thanks for your time. Thanks for Thank you inviting me. so much. Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.